सेंटर लुक प्लीज। राइट लुक यस। कौन मंगवा रहा है? हाँ मारो ना भाई, मारो ना। मारो रुकाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी। नो भाई नो। या यू लुकिंग। You're always in traffic. That's what I see on Instagram. Excuse me. हो गया? या लुक मामा मेरे साथ हो। हेलो क्या वही सोते जाना छोड़ दो। ये तो मैंने समझ रही हूँ बहुत अच्छे से सिद्धार्थ। मेकअप उतर जाएगा यार। करिश्मा जी एक सोल है। थैंक यू। मैम आपका लेफ्ट। मैम ये
पूछेंगे मुझसे? कौन? ओके, और कौन पूछेगा मुझसे क्वेश्चन? अच्छा, you guys, all of you are going to ask from here and there. First of all, how much are you excited today releasing this show? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटमेंट है हम लोगों के बीच में. आई एम जस्ट सो इट्स बिन अ वाइल. बहुत टाइम गया और हमने बहुत मेहनत किया और अभी फाइनली कॉमेडी सर्कस आ रहा है. तो मतलब मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रहा है और बहुत एक्साइटिंग फील आ रहा है कि आई कैन नॉट वेट फॉर द स्क्रीनिंग. और मैं ये मतलब वेट नहीं कर सकती हूँ कि मैं देखूँगी लोगों का रिएक्शन क्या होगा कॉमेडी सर्कस का. क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमेडी सर्कस का नया सीज़न इसमें बहुत नई चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड फास्टिंग चीज़ है. तो मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में. तो आपको भी कॉमेडी करते हुए देखेंगे या क्या एक और बात बताइए. मतलब आप बीच में कॉमेडी करोगे या फिर? मैं थोड़ा कॉमेडी करूँगी, मतलब जो भी लिंक्स हैं मेरे तो मैं थोड़ा कॉमेडी करूँगी इसमें. वो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा. जो भी कॉमेडी मैं करूँगी, ऑब्वियसली मैं एक एंकर हूँ तो मैं मतलब कॉमेडियंस के हिसाब से यू नो दे आर डूइंग मोस्ट ऑफ द कॉमेडी, पर मैं थोड़ा सा कुछ मेरी तरफ से भी होगा. थैंक यू. आज शो अलग होने वाला है, कितना एक्साइटेड है और मतलब इस बार क्या अलग होने वाला है? आई एम सो एक्साइटेड. ये तो मेरा पहला बार है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. और कॉमेडी इज़ नॉट माई फोर्टे. तो मैंने मुबीन, सिद्धार्थ, बलराज से इतना कुछ सीखा है and I'm so excited. I hope everybody likes the show and everybody enjoys the show. I mean, it's come after so long, but I'm sure everyone's gonna love it. Like, I know everybody who knows about the show is so excited to watch it. So I just, I hope it works. What is your character? Any character you're playing in this show? You know, the thing is, when I had gone to audition for this thing, I wasn't very sure if I want to do this because it's so difficult because each time, each act, you have to play a different person. And so every time I have played a Marathi woman, I've played a Gujarati person, I have played a British person. So I think it's so good for an actor to be on Comedy Circus and go on stage being a different person each day. I think it's wonderful for an actor to get paid and learn. So I think I'm getting to learn so much and I'm getting paid for it. So, and I'm getting to laugh every day I go on set or for rehearsals. All I do is rehearse and laugh. So I think it's just a treat for me. It's not anything new for me. I think it's just something that I haven't done before comedy, so I'm a bit nervous about my comic bit, but otherwise I think it's fun and I'm not really nervous. As Sohail and Archana as a Oh, they're wonderful. You know, I think Sohail Khan is somebody, you know, even if sometimes I don't perform that well, I feel, but he, you know, always, you know, pumps you up by saying, Karishma, aapne bahut acha kiya hai. So, you know, I think as judges, if you have people who kind of encourage you every time, it really helps. And Archana ma'am, I think whenever she laughs, you know, when you're acting, you just know that you know, in the corner of your eye, you know, she's like laughing, and I think that just does it for you because her laughter is just everything for us. Thank you so much. Thank you. I wanted to. डेफिनेटली कॉमेडी सर्कस को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एट कॉमेडी,
मेरी ऑडियंस से मुझे कभी ये करते हुए नहीं देखा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ डिफरेंट करके दिखा रही हूँ। एंड कॉमेडी सर्कस खुद एक इतना बड़ा ब्रांड है एंड 6 साल ये शो लगातार चला है। आज इतने सालों के बाद वापस आ रहा है ये शो, तो हम सब के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है और डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टू डू समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स दोनों जजेस मेरे फेवरेट है, बट आई डू लाइक अर्चना पुरन सिंह। मैंने उनके साथ कुछ कुछ होता है में काम किया था, सो आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हर। आपने कितने सारे प्रैक्टिस किए हैं फॉर योर रोल? मेरी कितना प्रैक्टिस किया आपने किरदार निभाने के लिए? एक अलग-अलग जॉनर्स आपने अलग-अलग कैरेक्टर्स आपने करने वाले? डेफिनेटली हमने बहुत रिहर्सल किया है एंड ये शो में बहुत नई चीज़ें करने को मिल रहा है। हर एपिसोड, हर स्किट में एक नया अवतार है। तो आपने हमेशा देखा है दैट इट्स ऑलवेज लाइक यहाँ पे गांव वाली so many different characters to play, models and everything. We're doing everything on the show already. हमने इतना कुछ कर दिया है, तो बहुत सारे नए अवतार भी देखने को मिलेंगे। कॉमेडी सर्कस एक बेंचमार्क सेट कर चुका है, तो क्या नर्वसनेस है क्योंकि अच्छा होना चाहिए या फिर ऐसा? ऑफ कोर्स ये प्रेशर हम सब फील करते हैं बिकॉज द बेस्ट कॉमेडियंस हैव कम आउट ऑफ कॉमेडी सर्कस। हम सब कपिल भारती इन सबको देख के हमने कॉमेडी को इतना इंजॉय किया है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रेशर टू परफॉर्म। लेकिन हमने भी बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं हम अपने ऑडियंस को नए बैच ऑफ कॉमेडियंस भी दें एंड आई एम श्योर आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा दैट वी आर नॉट मैचिंग अप टू देयर लेवल। थैंक यू। Now one on that. ओके, मूविंग कॉमेडी सर्कस पहले ही बहुत मतलब बेंचमार्क सेट कर चुका है, तो नर्वस है या फिर कितना एक्साइटेड है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि कॉमेडी सर्कस ही एक ऐसा शो है जिससे मैंने अपनी शुरुआत की थी कॉमेडी सर्कस के अजूबे, और इसी शो की वजह से हमें इतना नाम मिला है और आज वापस ये शो आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। और जिस तरह से हमने जो शूट किया है वो कमाल का अभी तक शूट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग इसको जितना पहले लोगों ने प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार इस शो को इस बार दोबारा देंगे। इस बार यूनिक ये है कि मैं और सिद्धार्थ हम दोनों की जोड़ी है, जिसमें से सिद्धार्थ आपको हमेशा पागलपन करता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप जानते हैं वो है थोड़ा सा, लेकिन वही पागलपन जो है उसके अंदर कॉमेडी को लेके, एक्टिंग को लेके वो करता हुआ दिखाई देगा और मैं उसको संभालता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि फिजिकल कॉमेडी सिद्धार्थ बहुत अच्छी करता है और मैं उसे संभालता हुआ दिखूंगा आपको। आप कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कॉमेडी होने वाली, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, अभी हमने जैसे मैं मुर्गा भी बना हूँ और संजू का स्पूफ किया हमने, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर संजू की जगह मैं होता, मुबीन होता तो क्या होता, तो इस तरह का हमने कुछ करने की कोशिश की है। और ये उसमें जो मतलब संजू के पापा वो ये बने हैं और संजू का जो दोस्त है कमली वो ये सिद्धार्थ बना है, तो वो एक अलग तरह का आपको दिखेगा कि उसको एडिक्शन चुटकुले सुनाने का है। मुबीन को वो चुटकुले सुनाने का एडिक्शन है, वो छोड़ना चाहता है, सिद्धार्थ को समझा रहा है कि छूट जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें। तो क्या कहेंगे आप? कैसा एक्सपीरियंस? मेरा तो वापसी है, तो मेरा कमबैक है, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और बहुत अच्छा दिन है। तो मैं जैसे पहले भी लोगों ने प्यार किया है और बहुत सी मुश्किलों में सपोर्ट किया है, मीडिया ने, सभी लोगों ने, तो मैं यही चाहूँगा कि जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा अपना कमिटमेंट पूरा करने की, कि मैं अब ज़्यादा एंटरटेन करूँगा। जितना भी मैं सिद्धार्थ को मतलब बहुत पहले से जानता हूँ, जब मेरे ख्याल से सिद्धार्थ कितने 13 साल का था, तब से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, तब से मैं अभी तक सिद्धार्थ को देख रहा हूँ। और जो इस बार सिद्धार्थ कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है कि मतलब आप लोग खुद देखेंगे। और हम दोनों की जोड़ी साथ में, हम लोगों ने पहले भी कॉमेडी सर्कस में 2-3 ही एक्ट साथ में किए, लेकिन इतना प्यार लोगों को मिला है, लाइव शोज के लिए लोग हमें साथ में बुलाते थे। अब इस बार तो जोड़ी हमारी परमानेंट बन गई है, करिश्मा शर्मा हमारे साथ है। और जो धमाल सिद्धार्थ कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है और बहुत ही अच्छा कमबैक है सिद्धार्थ। पहले भी मूवी में हम लोगों ने काम किया है साथ में, और जब किया है तब स्टैंडिंग ओवेशन ही मिली है हमें। तो इस बार कम से कम हम लोगों ने अभी 8 एपिसोड शूट कर लिए हैं और बहुत कमाल हो रहे हैं और मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। मैं मौसियत कैरेक्टर तो होगा ही होगा, और नसीर साहब, इखलाक अहमद, मोहम्मद शहीद और खुशी लाला वो भी होगा साहब।
और बाकी और सारे कैरेक्टर्स हैं जो मूवी मैंने भी आपको थोड़ा सा बता ही दिया। संजू आ रही है जो भाई संजय दत्त बने, भाई बताओ संजय दत्त प्लीज इतना क्लोज चले भाई चल भाई बोलो। बोले तो बाबूजी मेरे को ना चुटकुले सुनाने का नशा हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूँ। अच्छा मेरे को बताओ ना प्लीज़, एक सुन लो ना, सुन लो। ये जो नील आर्मस्ट्रांग था वो जब चांद पे गया तो उसकी वाइफ ने सफ़ेद साड़ी पहनी, काय को क्योंकि उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया था। ऐसे गंदे पीजे भी सुनाए हैं हमने कभी बीच में। एडिक्शन जो है वो गंदे पीछे सुनाने का ही है। बट ये कि मेरा बहुत पहले भी मन था और हम लोगों ने पहले भी कभी बात की थी कि हम लोग भाई जोड़ी में होने चाहिए थे कि हमारी जोड़ी बननी चाहिए। और ये सीज़न में आते हैं, हमें पहली खबर मिली कि मुबीन भाई के साथ हमारी बाकी उस सर के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है? कितना सारा हम उनके साथ देखेंगे आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए देखेंगे। एक्ट में भी हम लोग जो वहाँ जब हम बैठे होते हैं तो जो हमारे ऊपर पंच मार रहे हैं हम वहाँ से उनको जवाब दे देते हैं। कभी जब हम होते हैं हम उन पर पंच मार रहे हैं वो हमें वहाँ से जवाब दे देते हैं। और सारी जो चीज़ भी आपको मिलेगी शो में। और जितने भी आर्टिस्ट हैं नए जो आए हैं वो सब इतने कमाल है, इतने बेहतरीन है। उनकी सबकी अपनी यूएसपी है, अपना तरीका है कॉमेडी को करने का, उनका अपना एक स्टाइल है। जैसे कि पारितोष बहुत अलग करता है और पारितोष है, गौरव की अलग फिजिकल ह्यूमर है और बलराज है। ये लोग सबकी अपनी अलग यूएसपी है और मैं जानता हूँ कि ये शो इन लोगों के आने से और 4 चांद लगेगा। जजेस के बारे में क्या कहना चाहिए? अर्चना है और आइए आप थोड़ा सा आप कहेंगे। ये मैं यही कहूँगा कि जजेस अर्चना जी और सोहेल भाई ने हमें पहले भी जज किया है। उनके जो कमेंट होते हैं वो हमें ना और अच्छा करने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं कंटिन्यू शूट करके, कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं हो पाती जैसे हमने सोचा है। तो उस वक्त भी सोहेल भाई अर्चना जी हमें जिस तरह से मोटिवेट करने के लिए जो बातें कहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार इतने से में नहीं, और अच्छा करो और अच्छा करो। हाँ, हर बार इनके कमेंट्स हमें लोग को ये इस बात पे मजबूर करते हैं कि हम और अच्छा अपने कंपटीशन को हम ही अपने आप को ही अपना कंपटीशन मानने पे कंपटीशन मजबूर नहीं हैं। है, हमारा अपने आप से कंपटीशन है। और उनकी बातें सबसे अच्छी बात है कि जैसे अर्चना जी सोहेल भाई को बहुत अच्छी ह्यूमर की समझ है, बारीक से बारीक पंच लाइन जो होती है, जो कि कई लोग सोचते हैं अच्छा क्या अच्छा ये उतना टाइम भी नहीं लगता है। अर्चना जी को तुरंत हम बोलते हैं और वो समझ जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो और मेरा तो वापस आना ऐसा ही था कि लगा परिवार में आ गया हूँ मैं वापस अपने। बाकी ऑडियंस से कॉमेडी सर्कस देखना जरूर है। शनिवार रविवार रात 9:30 बजे। जो नहीं देखेगा उसके होगा बाल तोड़, और कहाँ होगा मैं बताऊंगी नहीं। हट मत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको बारी बारी बीच बीच में देखता रहूँगा। चलिए ओके बलराज, आज जो है शो ऑन एयर होने वाला है, कितने नर्वस और एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही रही होगी और नर्वसनेस आपको महसूस हो रही होगी। एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्रांड है और जब एक बहुत बड़ा ब्रांड आपके कंधों पर रख दिया जाता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस ब्रांड को उसकी रेपुटेशन के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना। और जिम्मेदारी बहुत है और हमने मेहनत भी बहुत करी है। लगभग हम लोग 3 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसके कंटेंट पे काम कर रहे हैं, इसकी रिहर्सल्स कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए और लोगों को क्या पसंद आएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वही होता है सर, जब रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो वीज़ा का हो, चाहे वो शो का हो, हर आदमी थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस रहता ही है। वो कॉकटेल ज़िंदगी में कभी जाएगी नहीं, वो बटरफ्लाई जो आपके स्टमक में जो होते हैं ना वो रहेंगे। इस बार नया ये देखने को मिलेगा जो मैंने पहले भी बोला कि नए चेहरे हैं इस बार। बहुत सारे नए चेहरे हैं। मैं, मुबीन और सिद्धार्थ हम लोग पुराने हैं, हम सर्कस का सीज़न पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बाकी तकरीबन सब लोग नए हैं। जब आप नए लोगों को देखते हो तो एटलीस्ट एक ये होता है कि आप उनको कंपेयर नहीं करते किसी के साथ। लोग हमें बोल सकते हैं कि यार पिछले सीज़न में तुम ऐसे थे, इस सीज़न में ऐसे हो। नए लोगों से फ्रेशनेस आती है और नए लोगों से ह्यूमर नया आता है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ये किया नहीं है तो हमारे पास उनके आसपास खेलने के लिए कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो नया ये देखने को मिलेगा कि नए लोग हैं और नए लोगों के साथ हम लोग नया ह्यूमर लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पुरानी रहेगी, वो रहेगा एंटरटेनमेंट। वो आपको डेफिनेटली मिलेगा और उस पर हम लोग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं है। ह्यूमर एंटरटेनमेंट वो पुराना ही है, बस हम नए हैं। पिछली बार मैं बिना दाढ़ी के था, इस बार दाढ़ी के साथ हूँ। 4 साल छोटा था, 4 साल बड़ा हो गया हूँ। ये चीज़ें नई ऐड ऑन हो गई है कॉमेडी सर्कस के सीज़न में। देखो शुरू में तो बहुत दिक्कत आती, क्योंकि आप लोगों को
एक दूसरे की टाइमिंग समझने में टाइम लगता है। लेकिन मैंने दिव्यांश से पहले भी काम किया हुआ है। दिव्यांश मैं अभी ऐसे करूँगा तो ये कैमरा में दिखेगा नहीं, तो छोटा सा दिव्यांश जो मेरे साथ पुराने शोज़ में था वो मेरी टीम में है। अदिति है मेरी टीम में, तो अदिति के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। जिनको बाकियों को आई होगी वो आपको बता के गए होंगे डेफिनेटली जब यहाँ से निकले होंगे। मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 बच्चे मेरे को दे गया कोई मेरा पड़ोसी के, बेटा ये देख लेना हम नानी के घर जा रहे हैं, अभी ये तुम्हारे वाले हैं। तो मैं तो बेबी सिटिंग कर रहा हूँ शो पे, और जब जब टाइम मिलता है फिर कॉमेडी भी कर लेते हैं। जजेस ने कितना एनकरेज किया सोहेल और अर्चना? ऑब्वियसली अर्चना तो मेरे को लगता है इनके बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। अर्चना तो एक चैनल पे बैठ के इनकरेज करती है, उनकी आवाज़ दूसरे चैनल तक पहुंच जाती है। तो शी इज़ ऑलवेज बीन देयर। मुझे लगता है कॉमेडी सर्कस अगर आप इमेजिन करते हो तो विदाउट अर्चना इमेजिन कर ही नहीं सकते। वो दैट लाफ्टर और एनर्जी, वो आई थिंक इट कम्स विद अ कॉम्बो। सोहेल भाई एज यूजुअल हमेशा ही बहुत इनकरेज करते हैं, और इन दोनों के सेट पे ना होने से ऐसे लगता है जैसे हम लोग कहीं मातम मनाने हैं, शूट करने नहीं आए। तो ये दोनों हमारे शो की बैकबोन है, जान है, सोल है। कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इन दोनों के रहने से ही शो बनता है। तो वो इनकरेजमेंट मैं वर्ड्स में कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आप जब शो देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये लोग कितना इनकरेज करते हैं। तो आपके साथ पार्टनर कौन है? मेरे साथ दिव्यांश, कैसे बताऊँ, मेरे साथ दिव्यांश है और मेरे साथ अदिति है। वो एक 11 साल का, एक 18 साल की, उन दोनों की टोटल एज भी मिला दे तो मैं तब भी 1-2 साल बड़ा हूँ उनसे। तो दिव्यांश के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके साथ दोबारा टीम अप करके। और अदिति के साथ भी मैंने काम किया। तो ये दोनों मेरे पार्टनर हैं, हमारी 2.5 की तिकड़ी है बेसिकली, 3 पूरे नहीं है। और बड़ा मज़ा आया काम करके उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 1 2 3 4 हाँ जी, कैसे हो? हाय। आप कितने एक्साइटेड हो कॉमेडी? बहुत ज़्यादा, जितने एक्साइटेड आप लोग हैं उससे ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि ये कॉमेडी सर्कस 5 साल बाद आ रहा है। और जो हमारी टीम है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है शो के लिए, और जो पहले लोग करके जा चुके हैं और हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और खराब करने का मजा ही अलग होता है। कैसे कर भाई, तू अपनी नहीं भाई, फुटेज अरे नहीं, अरे नहीं। और बलराज भाई जैसे बहुत अच्छा स्टैंड अप करते हैं, और हम लोग को चांस मिला एक साथ काम करने का, और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कॉमेडी हो रही है, और टीम जो है वो बहुत प्यारी है। ये अलग आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और ये बहुत अलग भी है क्योंकि मैं सिटकॉम से आया हूँ, सजेंद्र से मैं सिटकॉम से इधर आया हूँ, और इसके पहले मैं इसी शो का राइटर भी था, कॉमेडी सर्कस का मैं राइटर था, और मेरे को चांस मिला है करने का। हाँ जी, ओके। ये शो का मैं राइटर था और मेरे को मौका मिला है कि परफॉर्म करने का, तो और आई होप कि सबको पसंद आए। नहीं, लिखना भी डिफ़िकल्टी और परफॉर्म करना और ज़्यादा है, बिकॉज आप स्टेज पे जाते हो आपको लगता है कि यार भूल न जाए, कहीं ये ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रिहर्स करना, हमारे को आर्टिस्ट का रिहर्स करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी चीज़ के लिए। मेरे साथ सना सईद है, कुछ होता कि घर, और अभिलाष, आरजी अभिलाष है, तो हम लोग साथ में ट्रायो आ रहे हैं। कॉमेडी सर्कस में हमारी जोड़ी बहुत प्यारी है, और हमने एक्ट्स बहुत अच्छे किए हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एक्सपीरियंस ये रहा कि हम एक्ट करते करते कभी इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि हम आउट ऑफ द कंटेंट जाते थे, कि बिकॉज किसी के दिमाग से कोई लाइन स्लिप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि किसकी लाइन क्या होगी, और फिर हम उसको ऐसा मैनेज करते हैं कि ऑडियंस को पता भी नहीं चले कि हम कैसा, कहाँ पे भूलें कहाँ पे नहीं, बट मज़ा बहुत आता हमारे तीनों आर्टिस्टों में हमारे साथ। मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जितना प्यार आपने इससे पहले कॉमेडी सर्कस को दिया है उससे ज़्यादा हम दोनों को प्यार, हम सभी को प्यार दें, और देखते रहे कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो 6 साल के बाद कॉमेडी सर्कस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड नर्वस तो ऑफकोर्स हम सभी हैं, नर्वस तो ऑफकोर्स हम सभी हैं, बिकॉज बहुत बड़ा एक प्रेशर भी है। कॉमेडी सर्कस इतना बड़ा ब्रांड है इटसेल्फ, एंड इतने सारे सीजन हुए कॉमेडी सर्कस के, जो कि ना सिर्फ मैंने, सबने फॉलो किए हैं, पूरे इंडिया को जिसने हंसाया है, अब हम उसका पार्ट हैं। सो वी रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट वी रीच अप टू द एक्सपेक्टेशंस।
आई थिंक कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एन एक्टर कैन डू बिकॉज हंसाना हमें लगता है कि बहुत ईजी होता है, बहुत एफर्टलेसली बोल देते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई मीन कॉमेडी जितना मुझे समझ में आया है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग, डिलीवरी एंड अभी मैं बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग या एंड आई एम जस्ट ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग इट एंड इट्स टू मच फन. मतलब ऐसे लगता है सेट पे आके कि हाँ मैं मज़े करने आई हूँ. सो मैं बलराज भैया के साथ हूँ और दिव्यांश के साथ हूँ. हमारा तो मतलब बड़ी वियर्ड और बड़ी क्यूट सी टीम है एंड आई थिंक मतलब हमारी टीम हमेशा, आप जब देखोगे ना आपको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग हमेशा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आते हैं एंड मोस्टली आई एम पेयर्ड अप विद दिव्यांश, सो वी बोथ आर द कपल, सो व्हेन वी एंटर इट्स लाइक अ वियर्ड थिंग ऑल टुगेदर. एंड या आई थिंक इट्स नॉट ओनली एज द होल टीम इज सुपर्ब. आई मीन कॉमेडी सर्कस मैंने बचपन से, अभी भी बचपन ही चल रहा है, बट मैंने पहले से फॉलो किया है एंड अब मैं उसका पार्ट हूँ, तो विश्वास नहीं होता है कि यू नो सेम जजेस, सेम स्टेज, लाइक आई एम डूइंग इट. जो सैटरडे संडे खाना खाते मैं और मम्मी देखते थे, और मैं उसके पार्ट हूँ, सो इट्स अ गूज़बम्प्स वाली फीलिंग है. या नहीं टेंशन तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज जो कॉमेडी नाइट्स बचाओ मैंने किया था, उधर भी सुदेश जी एंड कृष्णा भैया वर माई पार्टनर्स, अगेन द धुरंधर्स ऑफ कॉमेडी. दिस टाइम ऑल्सो दिव्यांश एंड बलराज भैया धुरंधर्स ऑफ कॉमेडी. तो मैं तो बड़ी रिलैक्सड हूँ यार, वो लोग संभाल लेंगे. या अरे सपोर्टिव, मेरे पीछे पे हंसते हैं वो लोग यार, बहुत सपोर्टिव है वो लोग. आई थिंक दे आर वेरी 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 स्वीट. देव ऑलवेज बीन लाइक अरे वेरी नाइस. मतलब यहाँ कमेंट्स के बाद भी देव कम एंड सेड कि यू नो इट वाज वेरी नाइस एंड देव ऑलवेज करेक्टेड ऑल ऑफ अस कि यहाँ आपको करना चाहिए, करना चाहिए. सो आई थिंक दे आर वेरी 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 नाइस एंड सपोर्टिव. एंड मतलब मैंने तो पहले देखा हुआ है कॉमेडी सर्कस, तो ऐसा लगता है कि ओ शिट, मतलब ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं. बहुत ही बहुत सही वाली फीलिंग है. प्लीज़ 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 हमारा शो देखिए, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए एंड आई होप यू ऑल लाइक इट बिकॉज बहुत अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट. थैंक यू सो मच. 6 साल के बाद कॉमेडी सर्कस फिर से आ रहा है, कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस है, आज एयर होने वाला है? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ सबको कि सुहाग रात वाली फीलिंग है. हाँ, कि नर्वस भी और एक्साइटेड भी, कि मतलब पता नहीं क्या होगा पर कुछ अच्छा ही होगा. तो होप जो अच्छा हो वो पंच के रूप में जन्मे. कॉमेडी के रूप में जन्मे, और कॉमेडी की बहुत ज़रूरत है देश में, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ दुख है, कहीं सड़कों पे जाएं तो वहाँ दुख है, कहीं खरीदने जाएं तो वहाँ दुख है. तो इस बीच में कॉमेडी का होना बहुत ज़रूरी है. मेरी थोड़ी भी नहीं हुई है. He is a rock star. She is beautiful, she is charming, she is. तुम चांद क्यों नहीं बन जाती हो ईद में जाके छुट्टी लेके? बहुत अच्छी लग रही हो. Rock star and he's going to kill it. हाँ हाँ. अरे बाबा, नहीं झुके. ये आदित्य भाटिया हैं, ये परितोष घटिया हैं. देखिए अभी आप सोच लीजिए क्या होने वाला है कॉमेडी सर्कस में. यू हैव टू वॉच इट एंड ही इज अमेजिंग. आप हाँ, और ये सुनते ही आ गई. ये दूसरे टीम में हैं, तो इन पे हम लोग पंच नहीं मार सकते और ना लाइन मार सकते हैं. नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सोनी के साथ ही मेरा हर रूप निकल गया है. मैं क्राइम पेट्रोल करता था पहले, फिर मैं सुपर डांसर का हिस्सा बना, फिर मैं इंडियन आइडल का हिस्सा बना, फिर मैं अभी कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ. तो मैं बात कर रहा हूँ कि CID वाईडी और एक जो शो बच गए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाए मेरा. सॉरी, 377 का रूप भी देखने को मिलेगा हमें कॉमेडी सर्कस की बैठी में. 377 का रूप भी हमें कॉमेडी सर्कस में देखने को मिलेगा. 377 का रूप मतलब 377 जो सेक्शन, हाँ, उसका कुछ कॉमेडी वे में हमें देखने मिलेगा. अब मुझे लगता है, मुझे लगता है वो जो रूप है वो बहुत प्यारा रूप है, क्योंकि प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है और हिम्मत करके प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है. प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं. तो किसी के सेंटीमेंट का हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमेडी वो है जो गुदगुदाए, चूटी ना काटे, पिंच ना करे. डेफिनेटली आएगा. मामा के रूप में ही मेरी पहचान है. मेरी तो मम्मी भी मामा ही कहती है मैसेज करके, मामा जी कहाँ रह गए. तो मामा जी आएंगे पहले, उसके बाद मेरे और भी तरह तरह के रूप आएंगे. चूँकि मैं थिएटर से हूँ तो मेरी तैयारी, मेरी परवरिश वैसी हुई है कि मैं अलग अलग किरदार करना पसंद करता हूँ. तो बहुत सारे रूप आएंगे. बहुत कमाल है. 2 लड़कियां हैं मेरे साथ.
अनीता हसनंदानी जी हैं, वो अभी आई नहीं हैं पर उन्होंने अपना विश भेजा है हमें कि विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग लाइव भी है कहीं। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। आज रात 9:30 बजे हंसी फट के आने वाली है और टीआरपी मामा कह रहे हैं कि टीआरपी भी फट के आने वाली है। अनीता हसनंदानी मेरे साथ हैं और ओजस्वी अरोड़ा हैं, दोनों टेलीविज़न की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अनीता जी को तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत हिट शो दे रही हैं। आजकल वो टीआरपी की दुकान हुई हैं और हम टीआरपी मामा, तो होपफुली बहुत अच्छा वर्क होने वाला है। ओजस्वी बहुत प्यारी हैं, लाइन नहीं भूलती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, पवित्रा है। ओह माय गॉड, ओजस्वी बहुत प्यारी हैं, बहुत मेहनती हैं और ये लोग दोनों लाइनें नहीं भूलती हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मतलब मैं परफॉर्म करके जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, आज भी नहीं भूली। वाह, ऑडियंस को सब आपके हाथ में है, हमने अपना काम कर दिया है। आई होप, आई विश आपको बहुत मज़ा आने वाला है और हर तरह के रंग देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग तरह के एक्टर हैं, अलग अलग मूड के एक्टर हैं, अलग अलग तरह की कॉमेडी है, तो आपको पूरा अलग अलग फ्लेवर मिलने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, दोस्तनियों को बुलाइए और मज़ा लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, ये यहीं बैठे मुझे तारीफ ही करनी पड़ेगी। वेल एक्चुअली मुझे पहले से ही हमेशा कॉमेडी शोज़ का बहुत शौक था और मैं फ़िलहाल जो कर रही हूँ वो भी एक कॉमेडी शो ही कर रही हूँ, क्या हाल मिस्टर पांचाल। और साथ में जब मुझे ये कॉमेडी रियलिटी शो करने का मुझे ऑफर आया तो आई वाज पहले तो मुझे बहुत जैसे होता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक वो था, क्योंकि कभी लाइव शो करने का मौका कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, उस चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट क्योंकि मैंने दिल्ली में थिएटर किया है, so I thought let's go ahead with it. And right now I'm on cloud 9 because it's a different experience altogether, and I'm very very happy that I'm a part of this comedy circuit. ये सभी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि क्या लग रही है? Okay. What is it? 50 Shades of Grey. Well actually let's do it this way कि ये मेरी अपनी लुक है तो मुझे किसी और की तरह नहीं लगना। let it be ओजस्वी अरोड़ा only. Maybe this is my पहचान। एंड जो शो मैं कर रही हूँ क्या हाल मिस्टर पांचाल, जिसमें मैं परी का किरदार निभा रही हूँ, उसमें भी मेरी यही लुक है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं कभी बिना फ्रिंज के कहीं जाऊँ तो इतनी पहचान मेरी लाइक मे बी पीपल वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज मी जितना वो फ्रिंज के साथ करते हैं। सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। कॉमेडी रियलिटी शो कर रहा है, कॉमेडी सीरियल कर रहा है, तो आपको एक डिफरेंस लग रहा है कि आपको सेम लग रहा है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम जब कॉमेडी शो करते हैं तो हम रीटेक्स ले सकते हैं। अगर हमें लगा कि हमें कोई लाइन पंच क्लियर नहीं हुआ है तो वी कैन स्टिल टेक अनदर टेक कि नहीं एक और करते हैं। बट यहाँ स्टेज है, एक तरीके से लाइव है, देयर आर नो रीटेक्स, इसलिए आपने जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आपके साथ पोस्टर कौन है? आपके साथ मेरी टीम में पारितोष त्रिपाठी हैं जो टीआरपी मामा के नाम से जाने जाते हैं, और अनीता हसनंदानी है यानी नागिन। सो वी थ्री आर लाइक अ हाउस ऑन फायर, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। इनफैक्ट हम जब रीडिंग्स करते हैं तब भी हम लोग इतना हंसते हैं, अलग अलग पंच बना के, अलग अलग स्टोरीज बना के। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दीज टू आर वंडरफुल पीपल टू वर्क विद। क्योंकि जहाँ तक पारितोष की बात है, उन्होंने स्टेज और लाइव ये सब संभाला है, तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है कि अगर कुछ बाई चांस गुप अप हो गया या कोई चीज़ नहीं सही तरीके से आई तो ही विल बी एबल टू कवर इट अप। एंड एज फार एज अनीता इज़ कंसर्न, अनीता इज़ अ सीनियर, वो मतलब उनको तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज फार एज प्रोफेशनलिज्म इज़ कंसर्न एंड हाउ टू टैकल थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स वंडरफुल एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। तो फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? वेल मैं कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे परी के रूप में दिया है, मैं चाहती हूँ कि उतना ही प्यार आप मुझे इस नए शो के लिए दें, कॉमेडी सर्कस के लिए। सो प्लीज़ वॉच कॉमेडी सर्कस। थैंक यू। अरे सर्कस में कौन सी चाबी का ताला खोलने वाला? अरे ताला ये है, चाबी। हाँ समझ गए। ये जो आपका जो ह्यूमर है ना, आप ज्वाइन करोगे हमें?
यार कॉमेडी में वही है कि अलग अलग अभी तक स्पेसेस एक्सप्लोर किए हैं, रेडियो एक्सप्लोर करा है, फिल्म्स थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की हैं, डिजिटल एक्सप्लोर किया है। अब वो टाइम है जब टीवी को एक्सप्लोर किया जाए। सेकंड शो है तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्रिएट करना है, समझ रहे कितना कॉमेडी एंजॉय करते हैं आप एंड कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस जितना कि अब तक का शूट हुआ है? अभी तक का शूट हमने 7-8 एपिसोड शूट कर लिए, इंटरेस्टिंग रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि नए नए कैरेक्टर्स क्रिएट करने, क्योंकि हम वैसे ही गंदे दिखते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए कैरेक्टर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग है पर चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना, क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते जो भी आप कैरेक्टर बना रहे हो, उस कैरेक्टर को क्रिएट करना और ऐसा बनाना कि वो लवेबल रहे, मतलब आपको नहीं लगेगा क्या कर रहा है, उससे प्यार हो। सो वो एक चैलेंज है जिसको अभी तक सॉल्व करने की कोशिश। मेरे साथ सना सईद है, गौरव है, ओके मेरे साथ सना सईद है, गौरव है। गौरव खुद एक राइटर रहा है और सना सईद को हम लोग बोलते हैं कि हमारी टेक टॉक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई स्किट थोड़ा ठीक नहीं होता तो उसके बाद आएगी और क्या कर रहे हो तो क्या हो गया, ख़राब हुआ है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। सो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर का काम है वो हमारे साथ सना सईद ज़्यादा कर रही है। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस गर्ल यार, बहुत फील आ रही है। आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इस कॉमेडी सर्कस में कौन से किरदार में नजर आया? क्यूटी पाई शर्मा था जो इससे पहले टीवी पर था, दूसरे चैनल पर था, और डिजिटल कैरेक्टर एक मफलर मैन था जो केजरीवाल जी का स्पूफ था। यहाँ पर भी हर रोज़ नए कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर है जिसके साथ हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। वो कैरेक्टर्स जिनसे अब तक की बातचीत हुई थी, अब तक देखा है मैंने अपनी लाइफ में, कोशिश करूँगा कि उन्हीं को लेकर आऊँ एंड पीपल फॉलो इन लव विद देम। देखो बे टीवी शो और क्या देखो और बताओ हाउ यू लाइकिंग इट, क्योंकि हम सबके लिए नया प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है जिसको अब तक हम लोग देख कर बड़े हुए हैं स्कूल और टीवी के स्कूल और कॉलेज के टाइम से। सो आई जस्ट होप वी डू जस्टिस टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच। कॉमेडी सर्कस 5 साल बाद आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। यू नो इट्स अ शो दैट एवरीबडी हैज़ लिटरली ग्रोन अप टू। मैंने भी यू नो ऑलमोस्ट हर सीजन देखा है। इट्स अ शो फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ फन। हेक्टिक डे के बाद यू नीड अ शो यू नो वेयर विच मेक्स यू स्माइल। सो आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली ग्लैड कि मैं कॉमेडी सर्कस का हिस्सा हूँ एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। दे रियली गोना एंजॉय। तो कॉमेडी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना, तो आप इसके लिए कितना प्रिपेयर? वेल कॉमेडी, so comedy I've done with Opti, I've done 2 shows, and comedy is something which not necessarily comes naturally to me, but धीरे धीरे I'm getting better, you know, script पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा sense of humor you know real life में भी आ जाता है। So I'm learning with every single day, every single episode, and I've just realized that it's a area which I really enjoy. I really enjoy doing comedy. तो आपके साथ यार भी मामा है और ओजस्वी है, तो उनके साथ कौन कैसा है? I think Paritosh and me and Ojasvi, we are like first episode से ही we had like a really strong bond. तीनों ही प्रोफेशनल हैं, तीनों ही you know like अपना पार्ट दिल से करते हैं। एंड पारितोष इज़ अमेजिंग, ग्रेट टाइमिंग, वो हर एक्ट को ही होल्ड्स इट एंड हमें भी वो संभालता है। इट्स अ ग्रेट टीम। कई एक्ट्स इनफैक्ट ऐसे में बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर नागिन एंड ये है मोहब्बतें, ज़्यादा रिहर्सल नहीं कर पाई हूँ, बट उनके साथ बिना रिहर्सल करे भी अगर स्टेज पे चले जाओ सब कुछ संभाल लेते हैं। 3 शो का ना आप कैसे मैनेज करते हैं? आपका कितना हेक्टिक हो जाता है? थोड़ा सा हेक्टिक है बट आई नो इट्स अ फेज एंड मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। आई एम एन्जॉइंग इट। पता नहीं 3 different channels, 3 different genres, 3 different shows. It's amazing क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये फेज एट सम पॉइंट आता है। मेरे लाइफ में अभी आया एंड आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। आई एम एन्जॉइंग इट। मैं बिल्कुल भी क्रिप नहीं करती कि अरे यार यहाँ से अभी वहाँ जाना है, वहाँ से अभी। आई रियली एन्जॉय इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग लाइक दिस ऑलमोस्ट 24 hours a day. जजेस कितना
encouraging है, सोहेल है, अर्चना पुरानी है। सोहेल एंड अर्चना अमेजिंग। बीच में इनफैक्ट हमने एक एपिसोड शूट किया था, अर्चना जी को फ्लाइट लेनी थी, सो शी लेफ्ट अर्ली। वी वर मिसिंग हर सो मच। उनकी हंसी की, वो जैसे हंसती हैं, वो जैसे कमेंट्स देती हैं, उसकी कितनी आदत हो गई है हमें कि ऑलरेडी हमें ऐसे लग रहा था कि कुछ तो कमी है आज। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैमिली, डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड जो आपको और बेटर करने के लिए पुश करते हैं। आई थिंक सोहेल इज़ लवली, आई लव हिम। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की है। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड he he's really, you know, both of them are really supportive and push करते हैं to do better, so they're lovely. Yeah. थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि 10 का दम को रिप्लेस करने वाला है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा टीआरपी को लेकर और उस चीज़ को लेकर। मुझे नहीं रहेगा, भी है आपके साथ हाँ। शो में, तो हमें कुछ आई डोंट थिंक कि किसी भी शो के लिए यू सपोज टू टेक प्रेशर, यू सपोज टू गिव योर 100%। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 10 का दम को भी बीट करें एंड इंशाल्लाह होपफुली वी विल मैनेज दैट, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट वी आर ऑल रियली वर्किंग हार्ड। हम अपना 100% दे रहे हैं। सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन? अदिति भी है, तो आपको हाँ, सो अदिति इज़ ऑल्सो इन द शो, तो इट्स रियली नाइस क्योंकि माँ बेटी की जोड़ी वहाँ पर भी है। शी इज़ रियली क्यूट एंड बहुत हम इन्जॉय करते हैं। ये है मोहब्बतें में सीरियस सीन करके यहाँ पर एक्चुअली यू नो मिलके हंसना। कॉमेडी शो एक ऐसा यू नो एक मंच है जहाँ पर आप इन्जॉय करते हो। इट डजंट रियली फील लाइक वर्क, इट फील्स मोर लाइक फन एंड लेस लाइक वर्क। मैं बस ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि कॉमेडी सर्कस 5 साल बाद आ रहा है। कॉमेडी सर्कस से कई अच्छे कलाकार जैसे कपिल, भारती, सुदेश, कृष्णा उभरे हैं एंड वी अश्योर यू कि इस सीज़न के साथ ही अ ग्रेट टैलेंट इज़ गोना कम आउट। ऑल ऑफ देम आर फैंटास्टिक एंड डेफिनेटली वॉच इट। आप खूब हंसेंगे, खूब इन्जॉय करेंगे, यू नो यू विल स्लीप विद अ स्माइल ऑन योर फेस। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक they've made your weekend and enjoy Comedy Circus on Sony TV. Thank you. हाँ, उसमें आना है, ऑब्वियस स्क्रीन में आना है। ये लिखा नहीं, उसमें लिखा नहीं है क्या? हाँ, उसमें आना है, ऑब्वियस स्क्रीन में आना है। ये लिखा नहीं, उसमें लिखा नहीं है क्या? फॉर यू टू क्लिक मी, जस्ट वन मेमोरी के लिए, एक दो वहाँ से। यहाँ लुक आपसे बात करते आई थिंक कॉमेडी सर्कस ऐसा शो है जिसमें प्रेशर नहीं है और बहुत ही दिल से करीब वाला शो था, बिकॉज हमने 2008 में जब चालू किया था तब से लेकर 2014 जब हमने ब्रेक लिया, आई थिंक कॉमेडी सर्कस सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में इसकी एंट्री रही है और हमेशा मज़ेदार शो रहा है। और जब कॉमेडी सर्कस वापस लाने का सोचा तो आई थिंक इट्स मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज हम सोचते थे कि ये राइट गैप है 2 सीज़न के बीच में जो 4 साल का, तो कॉमेडी सर्कस वापस लेके आना चाहिए। आई थिंक कॉमेडी सर्कस में हमेशा नई नई टैलेंट को दिया है। आप इनिशियली देखिए VIP स्वप्निल, कपिल, भारती, सुदेश, कृष्णा सब नई टैलेंट लेके आए थे। इस बार भी उसी टक्कर की बहुत नई नई टैलेंट्स है एंड मुझे बहुत यकीन है कि लोग उसको सराहेंगे और मज़े लेंगे। जी ज़रूर ज़रूर, बिकॉज कॉमेडी सर्कस ना एक तो ब्रांड बन गई है, प्लस कॉमेडी सर्कस का मज़ा ये है कि आपको स्ट्रेस फ्री एक फॉर्मेट ऐसी है कि हर लाइन पे पंच है, हर जगह पे जोक है, तो जो हंसना चाहते हैं, जो कॉमेडी पसंद करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। एंड अगर ये 10 का दम था तो ये 20 का दम ऐसा मुझे लग रहा है। ऑडियंस को फाइनली ये देना चाहेंगे कि भाई कॉमेडी सर्कस देखिएगा। अर्चना जो फेफड़ा फाड़ के हंसती वो भी है, सोहेल है और बहुत प्यारी नई नई टैलेंट है। आज भी हम लोगों को पैसा नहीं देते और आज भी अर्चना मर्दी है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। मैं थक चुका राधे राधे
4 साल का गैप था, कितना मिस किया आपने? आपको कैसे लगेगा अगर आपको हंसने के लिए पैसे मिले? अच्छा लगेगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जाता हूँ हफ्ते में एक बार और दिल खोल के हंसता हूँ। थोड़ा गैप हो गया था 4 साल का, पता नहीं क्यों हुआ था, तो लेकिन वापस आ गया कॉमेडी सर्कस और नए टैलेंट के साथ, नए लोगों के साथ। जब मैं इनको देखता हूँ परफॉर्म करते हुए, तो एक्चुअली मुझे एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटर, मुझे एक जलन होती है क्या काश मैं इनकी तरह होता। द एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटर्स, द स्टैंड अप कॉमेडियंस, द आर्टिस्ट, द टीम, आई फील एनवीड व्हेन आई गो देयर। तो मुझे तो खुशी है। इनफैक्ट सालों के बाद जब मैंने एक फिर से कॉमेडी बनाई थी फ्रीकी अली, तो कॉमेडी सर्कस से इन्फ्लुएंस होकर ही बनाई थी, बिकॉज आई टू एंजॉय माई सेल्फ सो मच कि आई स्टार्ट मिसिंग कॉमेडी। और जो भी मैंने सीखा था, जो भी मैंने उस राइटिंग से, उन परफॉर्मेंसेस से जो मैंने ग्रास्प किया था, मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं। सो अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, वो इट्स थैंक्स टू कॉमेडी सर्कस। अब तक का जितना शूट हुआ है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एंड कितना आपने एंजॉय किया? मैं हूँ कॉमेडी सर्कस से एसोसिएटेड काफ़ी सालों से, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने जो गैप लिया था और जो रिवैम्प सब कुछ हुआ है, वो बेटर के लिए हुआ है। एंड जो मैंने करीबन अभी तक 4 या 5 हफ्ते उनके साथ काम किया हुआ है, एंड करीबन 8 एपिसोड शूट हुए हैं। जब वो दिन आता है कॉमेडी सर्कस के लिए आके शूट करना, तो मुझे खुशी होती है। मैं ये नहीं कहता क्या काम के बारे में मैं कंप्लेन करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है क्या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, या आप छुट्टी के लिए चले जाओ। कॉमेडी सर्कस एक ऐसा काम है कि मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता। मैं इंजॉय करता हूँ और मैं अपने काम को इंजॉय करता हूँ, तो उससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। सर जी डिफरेंट लुक में है आप, हम ऐसा माने आपके किसी अपकमिंग फिल्मों का लुक है, या फिर ये आपने कॉमेडी सर्कस के लिए तैयारी की, या आप बताइए? नहीं, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने कॉमेडी सर्कस के लिए शूट किया, फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न, उन्होंने बोला क्या हम कुछ हफ्तों के लिए शूट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई कंटिन्यूटी है नहीं कोई, तो मैंने बोला क्या अभी कुछ आगे बढ़ गया होगा, तो मैंने शेव कर दिया। गर्मी वर्मी थी तो ऐसे ही शेव कर दिया। जिस दिन मैंने शेव किया, उनका फ़ोन आ गया कि 2 हफ्ते के बाद शूटिंग है। तो मैंने उनको पहले ही पूछा कि भाई मेरा लुक देख लो, हाँ अगर निकालना है तो अभी निकाल दो, सेट पे मत निकालना। तो उन्होंने बोला नहीं आ जाओ। तो नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, खाली गर्मी लग रही थी तो निकाल दिया। अच्छा, फ्रीकी अली हमने देखा, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद का हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखेंगे आपके प्रोडक्शन हाउस का, या कोई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है? या स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और हमने ये ब्रांड शुरू किया है द बैंक शोज़। तो ये पूरा साल उसी में निकल जाएगा, क्योंकि हर करीबन 3-4 हफ्ते के अंदर एक शो है मेजर सिटी पे या ओवरसीज़, तो वही पूरा वक्त ले लेता है। एंड सलमान भाई भी अभी बिज़ी है, और मेरा भी करीबन जून-जुलाई तक मैं उसी में बिज़ी रहूँगा। तो इस दौरान मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अपना टाइम जो है स्क्रिप्टिंग के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी शुरू होगा अभी, वो लास्ट क्वार्टर नेक्स्ट से शुरू हो जाना चाहिए। सोहेल भाई, बिग बॉस और ये दोनों सेम टाइम पे आने वाले हैं, क्या कहेंगे? कुछ कंपटीशन होगा इस बार? कंपटीशन तो अरे तू कहाँ सोहेल खान और सलमान खान को कंपेयर कर रहा है यार? नहीं, आई विश क्या मैं जेन्युइनली, बिकॉज मेरी पैदाइश इस इंडस्ट्री में हुई है, आई बिलीव एवरी कंपटीशन इज़ हेल्दी, वो सबको अच्छा काम करवाती है।
वो तो मेरे भाई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं दिल से हाँ हाँ नो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अरे बहुत सुंदर, मतलब अगर आज मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो वो है अर्चना। शी इज़ गॉन टू विजिट हर सन टू द US। मैं उसके साथ इतना वक्त गुजारता हूँ, आची के साथ हम लोग इनफैक्ट जब हमें ब्रेक भी मिलता है तो हम बैठ के बात करते हैं, और वो अपने फैमिली के बारे में बात करती है, मैं अपने फैमिली के बारे में बात करता हूँ। यू नो शी इज़ वन लेडी हु आई एम वेरी कंफर्टेबल विद, बिकॉज वो जिसको बोलते हैं ना कि वो जो भी कॉमेडी सर्कस इम्प्रेशन देता है उसके बारे में क्या वो एक्चुअली शी इज़ वो माँ बीवी जिसको बोलते हैं ना क्या वो, तो आई सिट एंड आई चैट विद हर अ लॉट, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। और कॉमेडी सर्कस जो है वो मेरे बगैर या किसी की ज़रूरत नहीं है कॉमेडी सर्कस को एज एन आर्टिस्ट और एज एन एंकर, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट कॉमेडी सर्कस कैन नॉट हैपन विदाउट अर्चना। नवरात्रि भी आ रही है, जी अक्टूबर को रिलीज है, आपका क्या कहना है? आप बताइए कि आप नवरात्रि के लिए कितने एक्साइटेड हैं? और थोड़ा बहुत आयुष हैं जो ट्रेलर आप मतलब सब कुछ आपके घर का ही है, तो आप कुछ बताइए। 5 अक्टूबर को आ रही है, और हाँ जी हमारा मेरा और अरबाज भाई का थोड़ा कैमियो है। एक्चुअली मैं फ़िल्म देखने से थोड़ा कतरा रहा था क्योंकि फैमिली की फ़िल्म है, आयुष है, मेरी फेवरेट अर्पिता का हस्बैंड है, और तो मैंने अर्पिता ने कहा नो कम वॉच द फिल्म भाई, तो ऐसे यार तो मैं जाके फ़िल्म देखी और मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत भी अगर मुझे थोड़ा डर महसूस होता कि मैं कैसे कुछ बोलूं, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे वही लगा कि ये मेहनत रंग लाई है। उस लड़के ने उसको अपॉर्चुनिटी मिली सलमान खान प्रोडक्शन में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी आर्टिस्ट को मिलती है, लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी का वो अगर रिस्पेक्ट ना करे, अगर उसका सही मौका नहीं उठाए, तो वो 1-2 फिल्मों के बाद वो डाइल्यूट हो जाती है। आपको एक लॉन्च मिल सकता है, आपको एक अच्छा पैड मिल सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? आयुष ने बहुत मेहनत की और तो मुझे लगता है कि वही जो है उसको स्ट्रॉन्ग और उसको सेटल करेगी। तो जब मैंने फिल्म देखी मुझे लगता है क्या ऐसे यार ये थोड़ा प्रेशर में होगा, फैमिली है, कुछ वो पैनिक में कुछ वो जुगाड़ करने की कोशिश करेगा। अगर आप फिल्म देखोगे तो इतना इजी रिलैक्स्ड फिल्म के अंदर वही मुझे पसंद आया कि ही इज़ अ ब्रीज इन द फिल्म। आप जब 2.5 घंटे की फिल्म देखोगे आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी आयुष की वजह से, फिल्म की वजह से। बहुत प्यारी फिल्म है और आप तो जानते हो कि जो हमारा सेंसरशिप है वो घर से ही शुरू होता है, तो क्योंकि हम फैमिली फिल्म देखते हैं, बच्चे हैं, मतलब आयल है और अयान है, तो एक पूरी कैटेगरी है एजेस की, तो हम सब साथ में फिल्म देखते हैं। तो अगर हम सबको पसंद आती है, या देखो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एज फैमिली प्रोडक्शंस, अतुल की प्रोडक्शन हो या अर्पिता की हो या अरबाज भाई की हो, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्शन से जो फिल्म निकले वो पूरी फैमिली के लिए निकले। यू नो इट शुड बी अ यूनिवर्सल फिल्म। क्योंकि आपने फिल्म देखी इसलिए आपसे जानना चाहूँ, कुछ एक स्टेट का ऐसा कहना है कि हम नवरात्रि को रिलीज नहीं करेंगे, कुछ एक ऐसा कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर आया तब हम आपने देखी है, आप बताइए कि क्या जो ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि को रिलीज नहीं हो देंगे, क्या ऐसा होना चाहिए आपके? नहीं, मैंने फिल्म देखी है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत प्यारी फिल्म है और मुझे लगता है कि जो भी फिल्म देखेगा हाँ वो यही उसकी सोच यही होगी कि बहुत प्यारी फिल्म है, सुंदर फिल्म है और इनिसेंट प्योर लव स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म देखें, मैं चाहता हूँ कि जिनका भी जो भी कंसर्न है, थोड़ा कंसर्न है, वो अपने हैसियत से सही भी होंगे, बिकॉज मैं एक्चुअली टेक्निकल नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फिल्म देखी है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फिल्म है, प्योर एक इनिसेंट प्योर लव स्टोरी है और जो भी देखेगा मुझे लगता है कि उसको
जो भी उनके कंसर्न्स है वो सब मिट जाएंगे। Any favorite season from the past or any punchlines that you remember from the previous season of Comedy Circus? Anything? ओ नो यार, हम लोग तो वही डिस्कस कर रहे थे क्या हमको फिल्मों के डायलॉग याद होते हैं क्योंकि वो बहुत कम होते हैं फिल्म के अंदर। कॉमेडी सर्कस का ये प्रॉब्लम है क्या इतने पंचेस होते हैं, इतने एक्ट्स होते हैं और क्या कुछ बाय द एंड ऑफ इट एक एक्ट के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। सो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मी एंड आर्ची कीप ऑन कमेंटिंग दैट समटाइम्स वी जस्ट फील दैट कॉमेडी सर्कस इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड क्योंकि इतनी अच्छी लिखाई होती है कि आप अमेज हो जाते हो। हम सालों काम करते हैं सीन्स के ऊपर और स्क्रिप्ट के ऊपर कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले और ये लोग जो है हर हफ्ते कमाल करते हैं। या भाई हम लोग यहाँ कॉमेडी सर्कस की बात करने आए। हाँ, थैंक यू।